Good morning, students. My name is Dilip Kumar Mathur, and I am your math teacher of class 4. Today we will read the chapter 4. The name of the chapter is shapes. Today here we will read the many types of shapes and what give me the shapes information. So you can see we have the shapes only of solid figure. Solid figure that means जो कि मेरे पास फिक्स हो, जो सॉलिड उसे सॉलिड कहेंगे। जो मैटर जो चीज मेरे पास फिक्स होगा उसको सॉलिड कहेंगे। सॉलिड सॉलिड फिगर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिगर, वन 2D and second 3D. 2D and 3D are in two dimension and three dimension. That means in which figure we have only two dimensions, like as the first length and breadth. Like as the square, that means he has only length and breadth. So this is the figure of 2D. Rectangle is also the length of length and breadth. So this is the 2D figure. And 3D figure, that means where the dimension will be length, breadth and height. That means in keyboard there are three dimensions, in cube there are three dimensions, cylinder there are three dimensions, and many types of figure are here of 3D. So in this chapter we will only read the figure of 3D. So I am giving the heading 3D. As you can see, face, edge, vertex. That means in a solid, what is the face, what is the edge, and what is the vertex. So I draw a figure here. You can see face. That means the area of the curve. Area of the curve. That means if this area, this face, this is the face of the figure, this is the face of the figure, this is the face of the figure. That means कहने का मतलब यही है कि जो एरिया मेरा कवर हुआ चारों तरफ से वो किसी भी सॉलिड का एक फेस होता है. So face is like we can say that the area which are covered. Okay. Edge क्या होता है कि that in with two faces, जब किसी दो फेस को जॉइंट किया जाता है तो वो एक एज होता है. That means जब इन दो फेस को जब जॉइंट किया गया तो ये जो जॉइंट हुआ इस लाइन पे ये फेस का एज कहलाता है. ओके. सो जब किसी दो फेस को आपस में जॉइंट करेंगे तो वो एक एज बनाता है. दैट इज कॉल्ड एज. वर्टेक्स that means in a solid the corners are called vertex. That means किसी भी solid में जो corner होगा, like here this is the one corner, this is the two corner, this is 3, this is 4. These are called vertex of a solid. Okay. Only the corner of the face. Now we will discuss about the keyword. So what is keyword? As you can see here, this is the shape of keyword. In keyword there are the dimension of length, breadth and height. That means in a keyword length, breadth and height are of different size. That means वह face, वह solid जिसमें length, breadth and height तीनों का जो डायमेंशन होगा वो अलग अलग होगा तो वो कहलाता है मेरा keyword. ओके. इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम ना हो. फिर कहा जाए कि कीवर्ड में कितना फेस होता है. एज यू कैन सी हियर कीवर्ड का ये एक फेस कहलाता है. इसी तरह ऊपर ये ऊपर का एक फेस है, सेम आइडेंटिकल फेस उसका एक नीचे भी है यहाँ पे. देन बॉटम साइड ऑफ दिस फर्स्ट एंड सेकंड, द राइट साइड, लेफ्ट साइड, दैट इज 1 2 3 4 एंड दिस इज द front side, this is the front side and this is the back side. That means 1 2 3 4 5 6. So we can see here in a cuboid there are 6 faces. As you can see there are 6 faces. Now what are the edges? How many edges are? So हम कह चुके हैं कि जब किसी फेस को आपस में जोड़ा जाए तो एक एज बनता है. That means अगर इन दो फेस को जो टॉप है और जो फ्रंट है, जो टॉप है और जो फ्रंट है उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक एज बनता है. फिर अगर इस टॉप को और इस लेफ्ट फेस को, टॉप फेस को लेफ्ट फेस को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक एज बनता है. दैट मींस कि जो भी लाइंस नजर आ रहे हैं हमारे कीबोर्ड में वो उसका एज कहलाता है. दैट मींस एज कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. दैट मींस एक कीबोर्ड में जो एक सॉलिड है उस कीबोर्ड में 6 फेस 6 होता है, एज 12 होगा and the vertex. What are the vertex? Vertex that means the corner. As you can see here 1 2 3 4 5 6 7 8. That means
In a solid cuboid there are 8 vertex. So when I will ask how many faces in a cuboid, you can say 6. How many edge in a cuboid, you can say 12. And how many vertex in a cuboid, you can say 8. In the same way, cuboid is like a cuboid. Cube is like a cuboid. That means cube जो है वो cuboid के ही जैसे का दिखता है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि cuboid में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो है वो सेम ना होता है, और क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होता है। बाकी जो फेस क्यूबॉइड के हो वो क्यूब का भी होता है, जो एज क्यूबॉइड के हो वो क्यूब का भी होता है, और जो वर्टेक्स क्यूबॉइड का है वो भी क्यूब का ही होता है। बिकॉज़ जो फिगर जो है वो सेम ही दिखता है, थोड़ा ये हल्का बड़ा होता है, ये छोटा होता है। सिलेंडर में फेस क्या होता है, एज क्या होता है एंड वर्टेक्स क्या होता है। सिलेंडर यू कैन से दैट सिलेंडर जो है वो टॉप फेस एंड बॉटम सरफेस से घिरा हुआ, टॉप एंड बॉटम से दो सर्किल से घिरा हुआ एक कर्व सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस सॉलिड जो है वो इस टाइप का सिलेंडर दिखता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो फेस है वो फेस 2 होगा, क्योंकि ये है और एक ये है, क्योंकि ये दोनों एरिया जो है वो आपस में घिरा हुआ है। सो हम कह सकते हैं फेस जो है फेस जो है सिलेंडर का 2 होता है। एज, व्हाट आर द एज कहा गया है कि जब भी किसी फेस को जोड़ा जाए, जब किसी फेस को आपस में जोड़ा जाए तो जोड़ने वाला लाइन जो है वो एज कहलाता है। इन दोनों फेस को जोड़ने वाला लाइन एक एज और इन दोनों फेस को जोड़ने वाला ये है 2 एज। दैट मींस यहाँ पे एज कितना हो जाएगा 2। वर्टेक्स यहाँ पे कितना होगा, तो वर्टेक्स यहाँ पे एक भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉर्नर नहीं है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कर्व फेस क्या होगा, कर्व फेस एक हो जाएगा। सिलेंडर में एक कर्व एरिया भी है जो इस तरह घुमा हुआ है, इस तरह का, तो ये कहलाता है कर्व फेस। दैट मींस सिलेंडर में कर्व फेस भी होता है। कोन में भी एक फेस होता है। You can see in the base there is a face 1 एज। हमें कहते हैं कि जब किसी फेस को आपस में जोड़ा जाए तो वो एक एज बनता है। यहाँ पे डबल फेस तो है नहीं, तो यहाँ पे जो सिंगल एज बना हुआ है, ये लाइन जो फेस को आपस में जोड़ रहा है, ये एज भी इसका 1 होता है, और कर्व फेस भी 1 ही होगा क्योंकि ये जो एरिया मेरा है ये कर्व एरिया है, ठीक है। और इसका कॉर्नर भी, सॉरी वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स भी होगा क्योंकि यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। नाउ this sphere no faces are here, face 0, edge 0, because the face नहीं है तो edge भी नहीं होगा, vertex 0, but there is a curved face। यहाँ पे एक curved face नजर आता है, so there will be curved face 1। In the hemisphere there you can see here there is a one face and there will be one edge, you can see this is the edge, so there is a face 1, so there will be edge 1 because this is the lining of, this is the joint, this is a line to join a face, and since there is no corner so vertex will be 0 and the curved surface will be 1. Okay, these are the information of the shapes. Okay, so now we will read the next topic. The next topic is view that means देखना। जब हम किसी भी सॉलिड को देखते हैं तो देखने का 3 तरीका होता है। फर्स्ट इज फ्रंट व्यू, सेकंड इज साइड व्यू, थर्ड इज टॉप व्यू। दैट मींस हम किसी भी सॉलिड को फ्रंट व्यू से कैसे देखेंगे, तो देखेंगे तो क्या दिखेगा। सेकंड साइड व्यू से देखेंगे, कैसे देखेंगे हम, दिखेगा कैसा दिखेगा। टॉप व्यू में जब हम देखेंगे तो किसी भी सॉलिड को देखने पर वो कैसा दिखेगा। ओके, नाउ यू इट। So you can see here there is a figure. The figure is like here. This is the figure, and when we will see the figure like a front view, as you can see here the front view. That means जब हम किसी होम को हम देखेंगे फ्रंट व्यू से, मतलब ये दरवाज़ा दिख रहा है आपको, ये दरवाज़ा जब हम घर के अंदर एंट्री करेंगे तो ये दरवाज़ा किस तरह दिखेगा, जब हम घर के बाहर रहेंगे तो इस तरह दिखेगा। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो उसका आगे वाला चीज़ दिखता है। दैट मीन्स आगे वाला दृश्य दिखेगा व्यू, ठीक है।
साइड व्यू दैट मीन्स अगर हम घर के दीवार की तरफ से देखें, घर को दीवार की तरफ से देखें, देखिए आप ये देख सकते हैं एक फिगर है घर का, और इस फिगर को एक लड़की जो है वो उसके साइड दीवार की ओर से देख रही है, साइड व्यू जो कि हम कहते हैं। तो हम अगर दीवार की ओर से देखेंगे तो हमें सिर्फ घर का जो वॉल पोर्शन है, दैट मीन्स दीवार का जो पोर्शन है वही दिखेगा। दैट मीन्स कि जब फ्रंट व्यू को देखेंगे किसी भी चीज़ को फ्रंट व्यू से देखने पे, तो अगर हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो उसका हमको फ्रंट यानी कि गेट वाला दृश्य दिखेगा, और जब उसको साइड से देखेंगे तो उसका दीवार वाला दृश्य दिखेगा। ओके, नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ फिगर एंड वी वांट टू सी बाय द टॉप व्यू। टॉप व्यू कहने का मतलब यही है कि अगर हम इस घर को छत की ओर से देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक बच्ची इस घर को छत की ओर से देख रही है, तो अगर हम घर को छत की ओर से देखेंगे तो हमको पता है कि ये सिर्फ हमको उस घर का छत ही दिखेगा। दैट इज़ द कॉल टॉप व्यू। मतलब यही कि जब फ्रंट, टॉप एंड साइड, दैट मीन्स हम किसी घर को साइड से देखेंगे तो साइड ही दिखेगा, टॉप देखेंगे तो उसका छत दिखेगा, फ्रंट देखेंगे तो उसका गेट दिखेगा। देयरफॉर दिस सम आर एग्जांपल्स हियर, एज यू कैन हियर द एन एरोप्लेन। अगर ये एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन का अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे, ये फ्रंट व्यू है तो उसका सिर्फ हमको उसका मुंह दिखेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। साइड से देखेंगे तो उसका सिर्फ आदमी वाला चढ़ता है जहाँ उसकी कुर्सी वगैरह दिखते हैं, वो वैसा पोर्शन दिखेगा, ये साइड व्यू है। टॉप व्यू दैट मीन्स अगर उसको हम आसमान की ओर से देखेंगे तो ये सिर्फ कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ वैसे कुछ एग्जांपल्स है जो फ्रंट व्यू है, दैट इज रेलवे लाइन, जिस पटरी को अगर हम साइड से देख रहे हैं तो साइड दिखेगा, व्यू देखेंगे, टॉप देखेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज ऑल्सो साइड व्यू ऑफ टेबल। फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमको सिर्फ इस तरह दिखेगा, साइड से देखेंगे तो थोड़ा पतला दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो सिर्फ उसका ऊपर बैठने वाला भाग दिखेगा। ओके, We will read the next topic, map. As you know, what is the meaning of map? Map को मतलब यही होता है कि जब हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि मैप से जो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ को देखते हैं, कौन क्या है, हम कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब कि रास्ता देखने का, मैप पढ़ने की हम कह सकते हैं कि कहीं भी हमको जाने का अगर रास्ता पता ना हो तो उस जरिए हम रास्ता दिखा सकते हैं। और जब हम किसी भी चार्ट में मैप देखते हैं तो हम वहाँ खोज के देखना पड़ता है कि हम कहाँ हैं और हमको जाना कहाँ है, उसके आने जाने के रास्ते देखते हैं। तो मैप में भी वही करना है। इन अ मैप we will have given a figure will have given, and the question will say that you are here, like this is a map. In the map the question will say that you are here in the gate, this is the gate where I am। एक गेट है जहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पे एक स्कूल है, आपको एक स्कूल जाना है, यहाँ पे कुछ बाजार वगैरह है, कहीं पेड़ वगैरह है, तो आपको इधर से उधर से जाते हुए आपको पता करना है कि हम स्कूल को जाने तक, स्कूल पहुंचने तक का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। दैट इज और ये तभी संभव है जब हमको मैप देखना आता हो। ओके, तो ये जो रास्ता खोजने का जो तरीका है वो मैप के द्वारा ही संभव हो सकता है। दैट इज सिमिलर थिंग्स यू कैन यूज इन द सोशल मीडिया। ओके, द नेक्स्ट, नेट ऑफ ए क्यूब। नेट ऑफ ए क्यूब का मतलब होता है कि मेरे पास अगर एक क्यूब है, हमको पता है कि मेरे पास एक क्यूब होता है जो 6 फेस होता है, इस तरह एक क्यूब दिख रहा हो। ये भी पता होगा कि जब हमारे पास घर में शादी के दौरान कोई गिफ्ट वगैरह आता है वो पैक हो गया आता है, और जब गिफ्ट वगैरह कोई पैक हो गया आता है तो या तो वो क्यूब का आकार में दिख रहा हो या कीबोर्ड के आकार में दिखता हो। यानी कि अगर हो सकता है कीबोर्ड के आकार में दिख रहा हो तो गिफ्ट बड़ा होगा, क्यूब के आकार में दिख रहा हो तो मतलब गिफ्ट छोटा भी हो सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, जब कोई गिफ्ट आता है तो हमको मन करता है, हम लोगों को मन करता है कि गिफ्ट को खोल के देखें। तो गिफ्ट को खोलने के दौरान जब हम किसी गिफ्ट को खोलेंगे, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है कि अगर ये फेस मेरा सील है तो हम इसको पहले खोलते हैं, दैट मींस ये मेरा फेस खुल गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड फेस, थर्ड फेस करते करते जब 6 यानी कि इसमें 6 फेस है, 6 फेस को हम खोलेंगे तो ये आकृति की इस तरह दिखेगी। ये जो क्यूब मेरा बॉक्स होगा, जो गिफ्ट का बॉक्स आता है वो मेरा 6 फेस में इस तरह दिखेगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये बॉक्स जो है वो 6 फेस का होता है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो इसके जो साइड से जो नेट है वो इस तरह दिखेगा। नेट का मतलब कि खोलने के बाद, किसी भी बॉक्स को खोलने के बाद वो किस तरह दिखता है। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इस तरह ही दिखेगा, इसका पोर्शन जो है यहाँ भी हो सकता है, यानी कि ये एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये नेट ऑफ क्यूब जो है वो मेरा 6 फेस का होगा, खोलने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। नेक्स्ट क्या करना है, ये तो हो गया कि नेट ऑफ क्यूब होता क्या है। अब मेरे पास नेट ऑफ क्यूब दिया हुआ रहेगा और उसको बॉक्स में कन्वर्ट करना है। नेट ऑफ क्यूब दिया हुआ रहेगा, उसको बॉक्स में कन्वर्ट करना है। As you can see in here, there are some dotted lines, some of dotted lines and some other lines। तो करना क्या है कि जो भी मेरा डॉटेड लाइंस है
जो भी मेरा डॉटेड लाइन है, उस डॉटेड लाइन की सहायता से हर एक फेस को मोड़ते जाना है, मोड़ने जाना है। मोड़ते मोड़ते क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमको एक क्यूब मिल जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमको एक क्यूब मिल जाएगा, जब सारे डॉटेड लाइन को मोड़ देंगे, सारे डॉटेड लाइन को फेस के आधार पर मोड़ते जाएंगे, तो हमें एक लास्ट में एक बॉक्स के आधार में दिखेगा। दैट इज कॉल्ड नेट ऑफ ए क्यूब। नेट ऑफ क्यूब का मतलब जब किसी बॉक्स को हम खोलेंगे, सारे फेस को खोल देंगे, तो कुछ इस तरह का फिगर दिखेगा जो मेरा नेट ऑफ क्यूब होगा। ओके, सो जिस तरह हम क्यूब में किए हैं, इन द सेम थिंग वी विल डू इन द नेट ऑफ ए क्यूबॉइड। नेट ऑफ ए क्यूबॉइड। नेट ऑफ क्यूबॉइड भी वही होता है कि मेरे पास एक क्यूबॉइड दिया हुआ होगा, एक मेरे पास क्यूबॉइड दिया हुआ होगा। एज यू कैन सी दिस इज द फेस ऑफ, दिस इज द फिगर ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज द फिगर ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज द फेस ऑफ क्यूबॉइड। तो जब इस क्यूबॉइड का भी फेस को हम लोग खोलेंगे, जब इस क्यूबॉइड को फेस को भी खोलेंगे, तो हमें कुछ इस तरह ही मिलेगा, इस तरह नेट मिलेगा, जिसको हम लोग नेट ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं। इन द सेम प्रोसेस ये भी इसी में करना है कि जब भी आपको कोई फिगर दिया होगा नेट का कोई फिगर दिया हुआ होगा, उसमें कोई डॉटेड लाइन होंगे, और क्वेश्चन यही कहेगा कि डॉटेड लाइंस के सहायता से, डॉटेड लाइंस को मोड़ते मोड़ते आपको एक कीवर्ड बनाना है। ओके, सो बाय दिस वी कंप्लीट द चैप्टर 6. So next chapter will be the next class. Thank you.